roots of this quadratic equation are minus b square plus minus under root d by 2a. And since alpha, beta are the roots of this equation, alpha would satisfy this equation. Beta is also root of the equation. Beta will also satisfy the equation. Since alpha, beta are the roots of the equation, both alpha and beta would satisfy the equation, right? For example, अगर कोई quadratic equation है x square minus 4x plus 3, क्या रूट्स हैं इसके? x square minus 4x plus 3 के रूट्स क्या होंगे? जल्दी बताओ. रूट्स पूछा है मैंने, फैक्टर्स नहीं पूछा है. कौन बताएगा? अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है. 1 and 3 जोर से बोलो ना, चिल्ला के. तो द रूट्स ऑफ 1 and 3 है ना, इसके रूट्स हैं 1 and 3. So if I take it, if I write, if I replace x by 1, it would satisfy this. 0 आ रहा है ना, 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी 0 आएगा. दैट इज वाई अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा भी उसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी उसको सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. दूसरी बात, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम, अगर इसका 1 और 3 रूट है, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज अ फैक्टर x-1, x-3 also. So if you have a quadratic equation ax square plus bx plus c, you can always write this as x minus alpha into x minus beta into a also. So if we have a quadratic equation ax square plus bx plus c and its roots are alpha and beta, so we can always write ax square plus bx plus c as a into x minus alpha, x minus beta. इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा. So if you multiply x minus alpha into x minus beta, it is x square minus x into alpha plus beta, alpha beta. Or ax square plus bx plus c equals to ax square minus a into x alpha plus beta plus a into alpha beta. मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया. यहाँ तक ठीक है देवेशी, अनुज? यस सर. यस सर. अर्शिया, तुमने क्लास मिस की थी लास्ट वाली, 2 की थी? लास्ट 2 की थी. अभी वैसे रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं हुई ना उनकी. हाँ, वो लास्ट वाली नहीं हुई है, उससे पहले वाली तो हो गई थी. इससे पहले वाली भी नहीं हुई आई थिंक सर. हम्म आज हो जाएगी फिर. ओके सर, मैं कर लूंगी आज. ठीक है. Now let's compare this with this. Compare का मतलब will divide basically. जैसे कि coefficient of x square राइट साइड में कितना है? a. coefficient of x square लेफ्ट साइड में कितना है? a. coefficient of x on the right side कितना है? minus a into alpha plus beta, whereas coefficient of x on the left side is b. Constant term on the right side is a into alpha beta, whereas constant term on the left side is c. तो हमने क्या, दोनों साइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया. जो नॉर्मली हम कंपेयर इक्वेट नहीं करते, उनका प्रोपोर्शन में ले लेते हैं. ठीक है. वी डोंट इक्वेट देम, वी टेक देम इन प्रोपोर्शन. क्या हुआ मेरा? सर ये वही है ना, सी बाई ए माइनस बी हाँ बाई. वही है. एसी ऑन है लेकिन आज थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है ना, इसलिए ऐसा. यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ज़्यादा ठंडा है. इधर बिलो इट, जिसके नीचे आ जाओ. सो ए से ए कट जाएगा, तो फिर क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. If you cross multiply, minus b by a will be alpha plus beta. And if I take this term and this term,
So C by A would be alpha into beta. Alpha into beta is product of roots. Alpha plus beta is sum of roots. So alpha plus beta is also represented by S, which is sum of roots. तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट इज ऑलवेज minus b by a, and the product of roots is alpha into beta, which is c by a. ठीक है? So in a quadratic equation, sum of roots is minus b by a, product of root is c by a. And we can verify it also. यहाँ जरा देखो, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या थे? 1 and 3. तो सम ऑफ रूट कितना आएगा? सम ऑफ रूट इज 1 + 3, 4 हो गया, which is equal to minus of -4 by 1. Product of root 1 into 3, which is 3. So it is verified also. So whenever you have a quadratic equation, sum of root is alpha plus beta, which is minus b by a, and the product of root is c by a. So let's try to correlate or relate the nature roots with the coefficient of x square, x and c. ये लिख लिया तुम लोगों ने? मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में both the roots are negative. What can you say about the sign of ABC? बताओ. Both roots are positive ले लेते हैं पहले. What can you say about sign of A, B and C? अगर किसी क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, so what is the relation between the sign of A, B and C? सोचो और आंसर करो. क्या होना चाहिए? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है. मेहरा से ऑल पॉजिटिव. लेट्स सी. अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव, उनका सम भी पॉजिटिव आएगा. तो अगर सम पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव आना मांगता है. मतलब ए और बी का साइन ऑपोजिट होगा. राइट साइड इसका पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में माइनस बी बाई ए. ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन. ए और बी के साइन ऑपोजिट होने चाहिए. ठीक है? तभी तो पॉसिबल होगा. जबकि प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? अल्फा भी पॉजिटिव, बीटा भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा. तो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हुआ. मतलब इट इम्प्लाइज दैट ए एंड सी ऑफ द सेम साइन. तो क्या पता लग रहा है फाइनली हमें इससे? ए और सी का साइन सेम होगा, बी का ऑपोजिट होगा. लिख लो. साइन ऑफ ए एंड सी would be the same and it will be opposite to that of B. Sine of A and C be the same and that of B will be opposite to it. इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, क्वेश्चन को हमें देख के पता लग जाएगा इसकी रूट की नेचर क्या है. जैसे यहाँ पे x² - 4x
+3 इक्वल टू 0, बिना सॉल्व के तुम्हें पता लग गया किसके दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। देखो बी का साइन नेगेटिव आ रहा है ना। इफ आई राइट अनदर इक्वेशन x² - 5x + 6, आई नो दैट साइन ऑफ a एंड c इज सेम, b इज ऑपोजिट, तो इसके दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। इनफैक्ट इसके दोनों रूट आएंगे 2 and 3। तो या तो हम निकाल सकते हैं, बट बिना, अगर तुम कांट फाइंड द रूट्स, एटलीस्ट तुम्हें नेचर रूट्स पता लग जाएगी कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो इस क्वाड्रेटिक में ए और सी का साइन सेम होगा, बी का ऑपोजिट होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर इक्वेशन ऐसी है तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। नेक्स्ट, बोथ द रूट्स नेगेटिव, वो करते हैं। अगर दोनों रूट नेगेटिव है तो क्या होगा? दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, देख लो, सोच लो, थिंक लाउडली। सम ऑफ रूट तुम्हें पता है, प्रोडक्ट रूट भी दे रखा है, वरना अभी किरण बताएगी। किरण बताना जरा, सही बताओ तुम, क्या होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा दोनों नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। इसका मतलब बी और ए का साइन सेम हो गया। इट इम्प्लाइज ए बी ऑफ सेम साइन, बरोबर है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा भी नेगेटिव, बीटा भी नेगेटिव, अल्फा इंटू बीटा भी नेगेटिव हो गया। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, तो ए एंड सी का भी साइन सेम होगा। ए और सी का साइन भी सेम होगा बिकॉज अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है। तो मिहिया ने पहले एडवांस में आंसर दे दिया था सेकेंड वाले का, ए बी सी हैव द सेम साइन। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट नेगेटिव होंगे, देन ऑल ए बी एंड सी वुड बी ऑफ सेम साइन। ए बी सी ऑफ द सेम साइन, याद रहेगा ना ये रिजल्ट? एग्जाम्पल ले लो, x² + 4x + 3। देखो जरा इसमें क्या हो रहा है। ए बी सी का सेम साइन है, मतलब दोनों रूट्स के नेगेटिव आएंगे, दोनों रूट्स के नेगेटिव आएंगे। देखो वैसे ऑब्वियस सी बात है कि राइट, अगर लेफ्ट साइड में 3 टर्म पॉजिटिव हैं, उनका सम 0 कैसे पॉसिबल है? वो तभी हो पाएगा जब एक आध टर्म नेगेटिव हो, वो तभी हो पाएगा जब रूट नेगेटिव हो, बिकॉज पॉजिटिव का सम नेगेटिव 0 नहीं आ सकता ना अदरवाइज। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? थर्ड इज 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 1 रूट नेगेटिव 1 रूट पॉजिटिव। अब सोचो क्या हो सकता है? एक रूट नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव है। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द सम? सम क्या होगा? क्यों नेगेटिव भी आ सकता है? अगर -3 और +1 है तो, है ना, वो डिपेंड करता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मतलब सम कैन बी नेगेटिव, सम कैन बी पॉजिटिव, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक रूट नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो सम से हमें कोई आइडिया नहीं लगेगा, बिकॉज सम कैन बी नेगेटिव ऑल्सो पॉजिटिव ऑल्सो, बट प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या होगा? नेगेटिव होगा। एंड प्रोडक्ट क्या है? C/A। दैट मीन्स ए और सी साइन का साइन ऑपोजिट होगा, ए एंड सी ऑफ ऑपोजिट साइन। इफ यू कम अक्रॉस एन इक्वेशन इन विच ए और सी का साइन ऑपोजिट है, पॉसिबली, मतलब डेफिनेटली, पॉसिबली नहीं, इसका
जो रूट आएंगे वो एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। जैसे इसमें ए और सी का साइन ऑपोजिट है, कैन यू फाइंड द रूट्स क्या होंगे इसके? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस सी के रूट्स। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक रूट आएगा पॉजिटिव -6, दूसरा आएगा 1। आ गया ना ऑपोजिट? तो जब भी ए और सी का साइन ऑपोजिट होगा तो एक रूट नेगेटिव, एक पॉजिटिव, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये भी काफी काम आएगा। रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब एक रूट अल्फा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/अल्फा। एक रूट अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। तो अगर एक रूट दूसरे का 1 बाय रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा 1। 1 = c/a, दैट मीन्स a इज इक्वल टू सी। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रेसिप्रोकल रूट्स होंगे तो a इज इक्वल टू सी आएगा। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव में प्रोडक्ट निकाल दिया हमने, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो सी और ए का साइन ऑपोजिट हो गया। बी क्या पा रहे हैं हम क्वेश्चन? बी कुछ भी हो सकता है, बट ए और सी ऑपोजिट होंगे। तो बी पॉजिटिव होगा। सेम आएगा। तो रेसिप्रोकल रूट में हमेशा ए इक्वल टू सी आएगा। हो गया, ये आगे बढ़े। तो दिस इज a quadratic x square plus bx plus c is equal to 0. If I divide this quadratic by a तो क्या होगा? x square plus b by a into x plus c by a is equal to 0। ठीक है, ये आ गया। मैंने पूरी क्वाड्रेटिक को a से डिवाइड कर दिया। अब अभी हमने किया था दैट सम ऑफ रूट कितना होता है? सम ऑफ रूट हमेशा -b/a आता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा c/a आता है। सो b/a को कैन आई रिप्लेस बाय -s? s इज इक्वल टू -b/a, तो -s इज b/a। तो b/a को हमने -s से रिप्लेस कर दिया। व्हाट अबाउट c/a? p। तो अगर हमें रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो वी डी मेथड कर लिया या मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया। और अगर रूट्स दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी तो वी कैन यूज दिस। इफ यू वांट टू फॉर्म इक्वेशन प्रोवाइडेड रूट्स आर गिवन टू अस। अगर हमें रूट्स दे रखे हैं और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हम हमेशा ये यूज कर लेंगे। जैसे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं 5 एंड 7, या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं 4 एंड 1/4, एंड द क्वेश्चन इज फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे करोगे? यू फाइंड द सम, यू फाइंड द प्रोडक्ट, एंड देन एस और पी की वैल्यू चुपके से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या आंसर आएगा? तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो रूट निकाल सकते हैं, रूट दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। चिराग समझ में आ रहा है? Yes. जानवी? Yes, sir. जरा ये करना, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 and 1/4 बनाओ।
फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ईच केस, आराम से करो, देयर इज नो हरी। अगर तुम इसका एलसीएम ले लोगे तब भी वही आएगा ना, ए इक्वल टू 0 भी लिखो, ए और सी एक सेम आ गया। द रूट्स आर रेसिप्रोकल, ए विल बी ऑलवेज इक्वल टू सी। सर फिफ्थ एंड सिक्स्थ में एक ही है वो रूट? हाँ, एक ही रूट दे रखा है। ओके सर। दूसरा रूट मम्मी से पूछो। नहीं सर ठीक है। क्यों, एक रूट से कैसे होगा? सर वो दो बार यूज कर लो, एक ही रूट आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर। बताया था लास्ट क्लास में। अभी का मुस्कुरा रही है। मैंने बताया था जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं या कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं, सर्ड रूट वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स और सर्ड रूट और ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर। तो इसका सम कितना आ गया? 4 + 1/4, 17/4। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट किया, x² - 17/4x + 1 और 4x² - 17x + 4। अब द मोमेंट यू लुक एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता लग जाना चाहिए क्या हो रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब रूट्स रेसिप्रोकल होंगे। यू शुड ऑब्जर्व दीज थिंग्स। अगर किसी क्वाड्रेटिक में ए और सी इक्वल होंगे मतलब उसके रूट रेसिप्रोकल हैं। एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा² होगा। इसमें सम कितना आ रहा है? -9। प्रोडक्ट आ रहा है -18। और दूसरी बात, कोएफिशिएंट ऑफ ए और सी का साइन सेम है, बी का ऑपोजिट है, मतलब दोनों रूट पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना। दोनों रूट पॉजिटिव थे इसीलिए ए और सी का साइन सेम है, बी का ऑपोजिट है। अरे नाराज मत हो। -22। हाँ, वो तो बात हो रही थी देर से। ये भी सो गई थी। x² + 9x - 22। एक रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव में क्या थी सर कंडीशन? क्या था अभी ना? एक रूट नेगेटिव और एक पॉजिटिव में क्या बताया था मैंने? सी और ए का साइन ऑपोजिट होता है ना। ए और सी का साइन ऑपोजिट है तो एक रूट नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? सम -8, प्रोडक्ट 15। इसका आंसर आ रहा है x² + 8x। तीनों का साइन सेम है, ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव, मतलब दोनों रूट नेगेटिव आ गए। फिफ्थ वाले में कॉन्सेप्ट लग गया कि भाई सर्ड रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। तो अनुज, इसका दूसरा रूट कौन सा होना मांगता है? इसका कॉन्जुगेट होगा 5 + √3। √3। इसका कॉन्जुगेट होगा 3 + 7 i। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो एज ए रिजल्ट सम कितना आएगा? सम आएगा 10। और प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई करो, a - b, a + b अप्लाई कर दो, 25 - 3 दैट इज 22। सो इक्वेशन इज x² - s + p = 0। लास्ट वाले में क्या होगा? प्रोडक्ट हो जाएगा 9 + 49, 58, है ना। एंड व्हाट अबाउट सम? सम वुड बी 6। तो इसका आंसर आएगा x² - 6x + 58। ठीक है, लिख लिया। तो सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो यू नो हाउ टू फाइंड द रूट्स। और मान लो इसके रूट अल्फा और बीटा है। इट हैज अ रूट्स अल्फा बीटा। अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots
आर फर्स्ट पार्ट 1/α, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 1/α 1/β है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। थर्ड 3α 3β है। फोर्थ पार्ट रूट अल्फा रूट बीटा है। आंसर तुम्हारा एक्स ए बी सी के टर्म में आएगा, एक्स ए एंड बी एंड सी। कर लो। इसके रूट ये हैं, तो यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c/a। हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं 1/α 1/β। यू फाइंड s, यू फाइंड p, substitute, replace by that, you have to form quadratic equation। लेकिन फाइनल आंसर अल्फा बीटा के टर्म में नहीं आएगा, फाइनल आंसर हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर ए बी एंड सी। करो। सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो। मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं। जैसे कि रूट्स 1/α 1/β है, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 1/α 1/β है, तो सम ऑफ रूट कितना होगा, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है बिकॉज आई वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, नॉट अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस कर दो, तो क्या आंसर आएगा, और प्रोडक्ट कितना आएगा रूट्स का, इसका पी आएगा 1/α इंटू बीटा। लेकिन अल्फा बीटा हमारे पास ऑलरेडी है, उसको रिप्लेस कर दो, तो a/c हो गया। तो p पता लग गया और s पता लग गया ए बी सी के फॉर्म में। ना बीटा स्क्वायर है बीटा क्यूब है थर्ड में, सेकंड में। सेकंड में स्क्वायर है और फिफ्थ में क्यूब है। तो क्या इक्वेशन बन रही है, एक्स स्क्वायर सम है -b/c एंड दिस इज a/c। तो पहले वाले का आंसर आ रहा है सी, एलसीएम ले लो, cx² माइनस माइनस प्लस bx प्लस है, ये आ रहा है ना। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 1/α 1/β हैं, वो होगी cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। इसी तरह से बाकी सारे करने आराम से, टेक योर ओन टाइम एंड आंसर। लास्ट में उसमें फॉर्म उसमें कर दिया ना, एलसीएम ले लिया। माइनस ही तो एस -b/c आया ना, एस जो निकाला वो -b/c आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना फिर। कर लिया तुमने ये सेकंड पार्ट। सम ऑफ रूट हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब प्रॉब्लम है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, तो ट्राई टू यूज आइडेंटिटीज। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, और फिर अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस कर दो,
अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज 2c बाई ए। तो एस की वैल्यू मिल गई बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये आ रहा है एस। और प्रोडक्ट कितना आ रहा है? प्रोडक्ट होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विच इज सी बाई ए का होल स्क्वायर। तो पी की वैल्यू भी पता लग गई। So we know S, we know P, we can substitute over here. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की जगह आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स, एंड द प्रोडक्ट इज सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो वी हैव फॉर्म द इक्वेशन। कर लो, नेक्स्ट करो। आइडेंटिटीज का खेल है सारा। क्या बोल रही है? फेंक दो सब कुछ। इसको रूट के अंदर ले लो, इससे लिख लो। अंडर रूट के अंदर लोगी तो बन जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा अच्छा, पेन उठाओ, बताता हूँ। हम्म कैसे डायरेक्ट? वो रूट अल्फा, तो रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है वो। अब उसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। हाँ, नहीं नहीं, वी कांट। थर्ड वाला तो हो गया सभी का। थर्ड का आंसर आ रहा होगा। मैं बताता हूँ, शॉर्टकट भी है इसके अपने पास। थर्ड वाले में अगर तुम एक्स को x/3 से रिप्लेस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। आई टेल यू क्या आंसर आ रहा होगा। एक्स की जगह x/3 डाल दो, सारे पाप धुल जाएंगे। तुम्हारा थर्ड का आंसर आ रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9c। ये आ रहा है? -c तो नहीं आ सकता। थर्ड का आंसर आ रहा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 3b x प्लस 9c इक्वल टू 0। ये आ रहा है? एम आई राइट और मैं लेफ्ट, अर्शिया? You're right, sir. ओके। अब इसका शॉर्टकट था ये। अब मैं बाकी का शॉर्टकट बताऊं तुम्हें। पहले वाले का शॉर्टकट था तुम एक्स की जगह 1/x रिप्लेस कर दो, चुपके से आंसर आ जाएगा। एक्स की जगह 1/x को रिप्लेस करना, ये आएगा a/x² प्लस b/x प्लस c इक्वल टू 0। तो तुम्हारा आंसर होगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये आंसर था। ये इनके शॉर्टकट भी हैं। अगर किसी इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, उनका रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन निकालनी है तो एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दो। इसका इसका शॉर्टकट क्या होगा सेकंड वाले का? सेकंड वाले का शॉर्टकट भी समझ लो क्या है। सेकंड वाले का शॉर्टकट ये है कि एक्स को रूट एक्स से रिप्लेस कर दो। इसका शॉर्टकट ये है, रिप्लेस एक्स बाय रूट एक्स। दिस इज अ शॉर्टकट फॉर द थर्ड वन। सेकंड वन करके देखो। अगर एक्स की जगह रूट एक्स डालें तो क्या बन जाएगा? ये ए एक्स हो जाएगा बी रूट एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आंसर आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा है बिकॉज इसमें क्वाड्रेटिक नहीं है। तो अब दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। जरा चेक करना ये आंसर है क्या।
ई कहाँ है? ये अंधा भी बोलेगा सी है। क्या रे, ये सेकंड का आंसर है नहीं है? सेकंड वाले का यही है। सो दीज आर द शॉर्टकट्स। अब तुम मुझे शॉर्टकट खुद बता सकते हो। इसका शॉर्टकट क्या होगा? रिप्लेस लगा दिया ना मन में भी, एक्स को वन बाय एक्स से रिप्लेस कर दिया, सोती रहती है। रिप्लेस एक्स बाय क्यूब रूट एक्स। उल्टा सिस्टम चलता है, ठीक है। अगर रूट रेसिप्रोकल हो रहा है तो एक्स को वन बाय एक्स से रिप्लेस करो। रूट के टाइम्स अगर हो रहा है तो एक्स को एक्स बाय के से रिप्लेस करो। रूट अगर स्क्वायर हो रहा है तो उसको रूट एक्स बना दो। रूट अगर क्यूब हो रहा है तो उसको क्यूब रूट बना दो। आई वुड लाइक दैट यू आंसर दिस बाय बोथ द मेथड। मेथड से भी करो, शॉर्टकट से भी करो, काम आएगा। फोर्थ हो गया सभी का, या नहीं हुआ है? अनुज, फोर्थ वाला हुआ? फोर्थ सर वाले में, हाँ फोर्थ सम वाले। रहेगा सर, प्रोडक्ट निकाल दिया उसका। हाँ, सब में क्या करोगे, इसको रूट के अंदर ले लो। यस, कुछ नहीं कर सकते। रूट के अंदर इसको ले लो ताकि ये स्क्वायर बन जाए। फिर ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा प्लस टू रूट अल्फा बीटा। रूट के अंदर रूट आएगा भाई इसमें। तो हमें सम पता है, इसका सम अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट कितना है, अंडर रूट सी बाई हो जाएगा। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस सम। एस यही आएगा इसका। एंड व्हाट अबाउट प्रोडक्ट? प्रोडक्ट आएगा रूट अल्फा इंटू रूट बीटा, विच इज रूट अल्फा बीटा विच इज रूट सी बाय। ये इसका प्रोडक्ट आ गया, इसका सम आ गया। तो आंसर हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ रूट ओनली, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हर चीज को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है यूजिंग आइडेंटिटी। बोलो, क्वेश्चन कौन सा? फिफ्थ। मेथड में अल्फा प्लस बीटा क्यू की आइडेंटिटी लगा दो। ए प्लस बी रहेगा वो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो याद कर लो। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये सॉरी पॉजिटिव होगी, ऐसे याद करो ना। यही है ना? नहीं, माइनस होगा ये, हाँ। इस आइडेंटिटी को ऐसे याद कर लो, कई सारे तरीके हैं इसको याद करने के। दूसरा ये है कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा होल्स कॉमन ले लेता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा बीटा। इफ आई फर्दर सिंप्लीफाई दिस, इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। मोस्टली यू रिमेंबर दिस, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को तुम ऐसे भी याद कर सकते हो। ट्रिगो में ये अक्सर यूज होता है, ये यूज कर लो। इसमें सम ऑफ रूट भी आ रहा है, प्रोडक्ट भी आ रहा है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। हो गया, लास्ट वाला हो गया, आंसर आ गया। अक्षरा लास्ट। हाँ करो। अल्फा बीटा में थोड़ी छोड़ना है आंसर, आंसर एबीसी के टर्म में आना चाहिए। हाँ कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। इक्वल टू जीरो तो लिखती नहीं हो तुम, इन सब में इक्वल टू जीरो होता है। हाँ ठीक है, करो सिंप्लीफाई इसको पूरा।
तो सम ऑफ रूट लास्ट वाले में आ रहा है, इसको हमने ऐसे स्टम में लिख लिया ना, -b/a होल क्यूब -3 अल्फा बीटा हो जाएगा c/a इंटू अगेन b/a। ठीक है, नाराज मत हुआ करो। a क्यूब ले लिया एलसीएम, -b³ प्लस 3abc, यही आ रहा है सम, एंड द प्रोडक्ट वुड बी अल्फा बीटा होल क्यूब दैट इज c³ / a³, है ना। आंसर आएगा x² -b³ प्लस 3abc/a³ इंटू x प्लस c³/a³। पूरी इक्वेशन को a³ से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर आंसर। अब इसको शॉर्टकट मेथड से करो। ये शॉर्टकट मेथड से ट्राई करो, सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, शॉर्टकट मेथड से ये आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है? सॉल्व हो ही नहीं रहा सर, ऐसा नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा मत पावर, करो। वो पावर फ्रैक्शंस जा ही नहीं रही एक्स की। बहुत नाइंसाफी है। वही तो मैं चाह रहा हूँ तुम उसको कर पाओ, बिकॉज वहीं पे देयर इज स्मॉल की, वो हमें आना चाहिए। वो काम आएगा बाद में क्वेश्चंस में। सोचो सोचो, आएगा। शॉर्टकट से करो। रिप्लेस ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स को क्यूब रूट एक्स से रिप्लेस करो और तुम्हारा आंसर आएगा। शॉर्टकट मेथड क्या था? रिप्लेस एक्स बाय x⁻⁻³ तो क्या बन गई इक्वेशन? x⁻²/3 प्लस b x⁻⁻1/3 प्लस c। बट ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम भी किसी से कम नहीं। c को आइसोलेट कर दो। क्यूब रूट को हटाना चाहिए ना, तो क्यूब रूट कैसे हटेगा? स्क्वायर करके या क्यूब करके? क्यूबिंग बोथ द साइड, cbs कर दो इसका। लेफ्ट साइड में a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। लेफ्ट साइड में अप्लाई आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी होल क्यूब। क्या आइडेंटिटी है? a प्लस बी होल क्यूब इज a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b। इसको इस फॉर्म में याद करो। जो हमने इससे पहले आइडेंटिटी की थी ना, उसी को तुम रीअरेंज करोगे तो ये आंसर आ जाता है। तो a³ से क्या होगा? ये आएगा a³ x⁻², ठीक है। इसका होल क्यूब करोगे तो क्या आएगा? b³ x प्लस 3a इंटू 10। मैं एक्स की पावर क्लब कर रहा हूँ, 2/3 1/3। और फिर ये आएगा a x⁻² प्लस b x⁻1/3, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -c का क्यूब विच इज -c³। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है। लेकिन ये जो टर्म है, ये तुम्हारा दोस्त -c के बराबर है। ये तुमने देखा नहीं। ये बी एक्स बन गया या -c बन गया? इज द सेम आंसर और नॉट? वही है। तो बड़े बड़े शहरों में ऐसा भी होता है। इस दिस दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू ड्राइव होम, कि इसको तुम इससे रिप्लेस करो। और अगर बाय चांस तुमने इसको इस फॉर्म में यूज कर लिया तो कभी भी नहीं हो पाएगा। अपने भी बाल नोच लोगे, पड़ोसी के भी। अगर बाय चांस तुमने ये यूज कर लिया आइडेंटिटी, तो फिर तो घोर अनर्थ हो जाएगा। विल वेस्ट अनदर 10 मिनट्स। किरण लिख लिया शॉर्टकट? लिख लो। लिखने की आदत नहीं है तुम्हें, फोटो खींचती रहती हो। पता लगा 1 साल की कोचिंग का फोटोग्राफर बन गई। हर हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का फोटो खींच लिया। कोई डाउट है इसमें? देविशी, चिराग, अनुज, जानवी? नो सर। ओके। अस्मी, કેમ છો?
समझ में आ रहा है? कौन सा चैप्टर है बताना? हाँ देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोल रही है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें रूट पता है, वी कैन ऑलवेज फॉर्म क्वाड्रेटिक। कुछ छोटे मोटे रिजल्ट हैं वो देख लेते हैं हम। सपोज वी हैव टू पॉजिटिव नंबर्स, we have a positive number a. So what can you say about the sum of a positive number and its reciprocal? अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, रियल नंबर, उसका और उसके रेसिप्रोकल के सम के बारे में क्या बता सकते हो तुम? बताओ, सोचो। दिस इज रिजल्ट दैट सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज दिस। बताओ, सम तो पॉजिटिव होगा, और कुछ नए नई बात बताओ। ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जोर से बोलो, तुम सही बता रहे हो। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। यस, किसी भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा टू से बड़ा आएगा, टू आएगा। टू कब आएगा? जब नंबर वन होगा। वो 1 + 1/1 इज 2। बट हमेशा किसी भी पॉजिटिव नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कोई सा नंबर तुम सोच के देख लो। किरण बोली 0.1 का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 0.1 + 1/0.1 सही में नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिमिलरली अनदर रिजल्ट, इफ ए इज नेगेटिव, फिर क्या होगा? सम ऑफ ए नेगेटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल विल बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू -2। ये भी लिख लो। सम ऑफ ए नेगेटिव नंबर and its reciprocal is always less or equal to 2. Next result देखो, for two positive numbers, if you have two positive numbers, then उनका जो arithmetic mean होगा a+b/2 will be always greater or equal to their geometric mean. For two positive numbers, arithmetic mean will be always greater than or equal to their geometric mean. इक्वल साइन कब आएगा? जब दोनों नंबर सेम होंगे। इफ टू नंबर्स आर इक्वल, देन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सेम होता है। अगर तीन पॉजिटिव नंबर हुए तो फिर क्या होगा? तीन पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन होगा a+b+c/3। तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया। जबकि ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इनका? तीनों को मल्टीप्लाई करके टू द पावर 1/3। नो नो, क्यूब नहीं, क्यूब रूट। हाँ, रूट साइलेंट था ना तुम्हारा। चार नंबर होंगे तो a+b+c+d/4 ग्रेटर इक्वल टू abcd टू द पावर 1/4। Suppose we have some polynomial f of x is equal to 0, और there is some interval a comma b। ठीक है, और
हमने पॉलिनोमियल में x को a से रिप्लेस किया, x को b से रिप्लेस किया, एंड वी फाउंड दैट इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है. f of a into f of b is coming out to be positive. Now the question is, what can you say about roots? इस इक्वेशन के कितने रूट्स पॉसिबल हैं? f of a into f of b is positive. So how many roots are there in the interval a comma b? तो अगर a और b दोनों का साइन पॉजिटिव है तो ये कंडीशन हो सकती है जिसका ग्राफ ऐसे बने कि f of a भी पॉजिटिव है, f of b भी पॉजिटिव है. कोई रूट नहीं आ रहा. रूट का मतलब है वो कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. एक भी रूट नहीं आया. ये भी हो सकता है, इट्स लाइक दिस, एफ ऑफ ए भी नेगेटिव है, एफ ऑफ बी भी नेगेटिव है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है. इसमें भी कोई रूट नहीं आ रहा है. रूट का मतलब है कितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. बट ये भी तो पॉसिबल है कि एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ जाए और एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव आ जाए. दोनों पॉजिटिव है, उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो गया. इस बार कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो ग्राफ? 4. इसका मतलब देयर विल बी 4 रूट्स. लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ये बी है, सपोज एफ ऑफ बी नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ ए भी नेगेटिव आ रहा है. तो एफ ऑफ ए नेगेटिव, एफ ऑफ बी नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव. इस बार कितने रूट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो इससे हमें क्या, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? जब भी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी पॉजिटिव होगा, देयर विल बी नो रूट और इवन नंबर ऑफ रूट्स. लिख लो, डायग्राम भी बना लो और ये रिजल्ट भी याद कर लो. पहले डायग्राम बनाओ. If f of a into f of b is more than 0, then there will be no roots or even number of roots in the interval a comma b. If f of a into f of b is greater than 0, there will be no root or even number of roots in the interval a comma b. There will be no root or even number of root in the, ये हो गया. अब नेक्स्ट कंडीशन, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0. फिर क्या होगा? मान लो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी नेगेटिव आ रहा है. एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज नेगेटिव. तो अगर एफ ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी नेगेटिव होगा ताकि उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए. एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी नेगेटिव है. एफ ऑफ ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ बी पॉजिटिव है.
तो इस बार कितने रूट्स नजर आ रहे हैं? Odd number of roots. Yes. So if f of a into f of b is less than 0, there'll be at least one root or odd number of root. कम से कम एक रूट जरूर आएगा. डायग्राम बना लो, फिर लिख लेना. चिराग, डायग्राम बन गया? Yes, sir. लिखो. If f of a into f of b is less than 0, if f of a into f of b is less than 0, then there will be at least one root or odd number of roots. There will be at least one root or odd number of roots in the interval a comma b. There will be at least one root or odd number of roots in the interval a comma b. लिख लिया? So if we have a quadratic equation, sum of root कितना आया था? Minus b by a, and the product of root c by a. Sum of root हमेशा आएगा coefficient of x divided by coefficient of the highest index. अगर मान लो क्यूबिक इक्वेशन होगी तो फिर क्या होगा? क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा. In a cubic equation, there'll be four coefficients, no, 4 unknowns a, b, c, d, और there'll be 3 roots. इन तीनों रूट का सम क्या होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमेशा आएगा. साइन ऑल्टरनेट हो जाता है. अब इसमें नेगेटिव था तो इसमें पॉजिटिव आएगा, b बाय a. क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट था माइनस b बाय a, तो क्यूबिक में सम ऑफ 3 रूट वुड बी प्लस b बाय a. ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोचो. एग्जाम्पल लेके देखो. इट विल बी नेगेटिव ओनली. नेक्स्ट में साइन चेंज होगा, ऑल्टरनेट होता जाएगा. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एट ए टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इट विल बी c बाय a. फिर वापस बोलेगी e लिख दिया. और लास्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स टेकन एट वन टाइम, दैट वुड बी माइनस d बाय a. तो साइन ऑल्टरनेट यहां पे. क्यों, तुम पाकिस्तान की पिटाई कराना चाहते हो? तो वो तो होना ही है. वो तो ऑपरेशन सिंदूर इज जस्ट 1 वीक अवे. जुलाई में होना है.